Come on, let's begin. Take out subsidiary books. You have the textbook, right? All of you have the books, textbooks. Standard textbook भी लाने को बोला था. See, first of all, tell me, what do you mean by subsidiary books? What are subsidiary books? Are they some other books apart from journal or ledger? Subdivision of journal. It is nothing but subdivision of journal. Now, why to divide journal? क्या कर रहा है? रहने दे. Don't touch it. Let it be. એને કરીશ ને એવું એક તો સેટિંગ માં છે ને પ્રોબ્લેમ છે. ઉપર નીચે થતું નથી મોર. જો હવે tell me what is subsidiary book, subdivision of journal, right? Subdivision of journal. So there is no third book of accounts basically. There are only two books of accounts, that is journal and ledger. Now why do we divide journal? Why there is a need to divide journal? Why do we divide? Why do we make subsidiary books? नहीं करते तो नहीं चलता क्या? Exactly, to simplify the things. When the business grows, all types of transaction grow, right? और सबसे ज्यादा कौन सा transaction होता है business में? Purchase and sales, goods का होता है. तो जितना business बढ़ता है उतना सब तरह का transaction बढ़ता है. सब तरह का बढ़ेगा तो goods का भी transaction उतना ही बढ़ेगा. बराबर है, उतना ही बढ़ेगा. तो गुड्स का ट्रांजैक्शन बढ़ने के वजह से आप क्या करते हो, अपने जर्नल्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हो. तो एक तरह के जर्नल में आप एक टाइप का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो. बराबर है. सो वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्नल यू रिकॉर्ड ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. And the second type you record the another type, third type, that is sales book, purchase return, sales return. Every journal you record specific type of transaction so that the transaction could be maintained systematically. और उसके बाद analysis भी आप कर सकते हो. आज मैं आपको बताऊंगा how to analyze it. That is also very simple. So analysis भी करना थोड़ा easy हो जाता with the help of subsidiary books. Okay. Now. एकदम चुप. खाली पेपर सॉल्व करना है चुपचाप. बाकी कोई ऑफ टॉपिक बात नहीं चाहिए. फटाफट. नहीं. फटाफट. So now analysis part we'll consider. I'll tell you how to do that. Okay. Now let's start with the problem. अच्छा, problem में हमने format देखा था. This chapter, how many subsidiary books are we going to learn? Basically 4. In all there are 7. What are the 7 books? Purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, petty cash book, and journal book. What do we record in purchase book? Credit purchase of goods. What do we record in sales book? Credit sale of goods. Only credit and only goods. What do we record in purchase returns? Purchase returns of goods. When we return the goods. Purchase return of goods. What do we record in sales return? Sales return. Customer returns the goods. Only 4 books dedicated to goods. Right? And that too on credit basis. That too on credit basis. What do we record in cash book? Cash and bank transactions. That will be in the next topic. What do we record in petty cash book? Small value cash transaction. That also will be learned in the coming topic. And आखिरी वाला सार्वजनिक. That is journal proper. जो कोई transaction, how do we recognize the transaction to be put in journal proper? The transactions which cannot be entered in any of the other subsidiary books would be entered in journal proper. So all non-cash expense, non-cash incomes, capital introduced in the form of assets, drawings done in the form of assets, opening entry, closing entry, asset purchased on credit, asset sold on credit, ये सब ट्रांजैक्शन किस में जाते हैं? जर्नल प्रॉपर. बराबर है. जर्नल प्रॉपर का कोई क्राइटेरिया नहीं है. those transactions that cannot be fitted in any of the above books would go in journal proper. यहाँ तक हमने देखा था.
इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 4 main books, 4 main subsidiary books. What are those 4 books? Purchase book, sales book, purchase return and sales. ओके, इसका आई थिंक एक प्रॉब्लम हमने किया हुआ था लास्ट लेक्चर में. ओके, याद है आपको फॉर्मेट? ओके, फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है. लुक्स लाइक जर्नल. ओके, बट स्लाइटली डिफरेंट. सो लेट्स डू इट. 4 सब्सिडरी बुक्स ड्रॉ कर लो. वी आर डूइंग सम नंबर 8. We are doing sum number 8. 8th problem. हेडिंग देना है इन द subsidiary books of. In the subsidiary books of. Okay, in the subsidiary books of whatever the name. Draw it. હમણાં ફાવે છે? આપીશ, હજી આવવાના છે. એલા એક કામ કરને, નહીં તો તું ત્યાં જા. લાસ્ટ બેચ તું અહીંયા આવી જા. તું શિફ્ટ થઈ જઈશ, પતલો છે એટલા માટે. જા જા. સંભાળીને જજે ખાલી. ધક્કો નહીં મારતો. बैग 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 आ जाओ, उसको आने दे. થઈ જશે. 3 નીકળે છે નીચે. फाइन. सामान ले लीजिए. पार्सल द लगेज. ठीक है अभी. चलो ड्रॉ करो फटाफट. 4 सब्सिडरी बुक्स. શું કરે છે? ખાલી રીડ કરે છે તું. કરો કરો. બીઆરએસ ને? ઇન્વેન્ટરીમાં રફ નોટ, બાકી તો ક્વેશ્ચન છાપવાનું છે. ના ના, ખાલી ક્વેશ્ચન છાપવાનું છે. પહેલા પ્લસ માઇનસ કરી આન્સર ટેલી કરી લો. આન્સર રાઈટ છે તો પ્રોબ્લેમ નહીં. સ્ટેટમેન્ટમાં તો ક્વેશ્ચન જ છાપવાનું છે. એના ને આજે સંધ્યાકાળી difference.
Remember what are the column heads? First, for purchase book, what is the column head for purchase book, guys? Start with date, then what? Name of the supplier. Supplier matlab creditor, LF, and then you got invoice number and amount. What do you have in sales book? Only thing that will change is what? Date, name of the what? Customer, because you sell goods to customer. LF के बाद आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. आउटवर्ड इनवॉइस मतलब सेल के वक्त हम लोग बिल बेचते हैं. इनवॉइस का मतलब बिल. इनवॉइस का मतलब बिल. तो जो बिल हम सेंड करते हैं दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो लिखा जाएगा. थर्ड बुक, व्हाट डू यू हैव इन परचेज रिटर्न्स बुक? What do you have in purchase returns book? It is date, name of the what? Supplier, name of the supplier, LF, then which note, which number you have? You got debit note number. What is debit note? We send it at the time of purchase returns. Purchase returns के time पे you send a debit note. Purchase returns के time पे you send a debit note. The debit note number and amount. And what about sales returns? Credit note. So this will be date, sales returns book. You got name of the what? Customer. Name of the customer, LF, credit note number and amount. Here you got debit note in purchase return, and in sales return you got credit note. How to do it, how to make the notes, what is the detail in the note and all we'll learn. आगे सब पढ़ेंगे. इनवॉइस कैसा दिखता है, कैश मेमो कैसा दिखता है, आपका जर्नल वाउचर कैसा दिखता है. ऑल दीज आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डेबिट नोट कैसा दिखता है, क्रेडिट नोट कैसा दिखता है. ओके, ये सब पढ़ेंगे आगे सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में. सॉरी, जर्नल प्रॉपर एंड जर्नल प्रॉपर या फिर नोट, दोनों में से उसका ट्रांजैक्शन आएगा तब बताता हूँ मैं. फिलहाल ये चार्ट ड्रॉ कर. हाँ है, अगर ट्रांजैक्शन तो बनाना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. अगर जर्नल प्रॉपर का ट्रांजैक्शन है तो करना पड़ेगा. रिमोट में गया इसी. देखो अभी ध्यान से पढ़ो. Sum number 8, from the following particulars make the necessary subsidiary books and post the transaction into respective ledger accounts. यहाँ पे लेजर अकाउंट भी पूछा गया है. लेजर अकाउंट विल बी डूइंग इट एट द एंड. उसके लिए साइड छोड़ना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको. सब साथ में करेंगे लेजर अकाउंट. लेजर्स आर वेरी सिंपल आउट ऑफ दिस. वी आर डूइंग इट इन द बुक्स ऑफ, कुछ दिया है? No books are mentioned, right? So let's start. Bought goods from Radheshyam 1500 less trade discount 10% and 5% cash discount terms. पहले तो बताओ, are you buying on cash or credit? You're buying on credit basis. बराबर है? Credit पे खरीद रहे तुम. You're buying on credit basis. So which book? Purchase book में जाएगा पहले तो. Go to purchase book. Go to purchase book and date would be 1/8/2010. What is the name? Radheshyam. Radheshyam. And what is the amount? Which discount are you going to subtract? Only trade discount. Cash discount subtract नहीं होगा. Why? Because it's on credit basis. Credit basis पे no need. These calculations are just for your understanding. You have to just mention the name. That's it. No account, no debit, no credit, nothing. Okay? Account, debit, credit, कुछ mention करने की जरूरत नहीं है. Sorted? Then next one. Purchase goods from Lakshmidhar 800 less 5% trade discount. लक्ष्मीधर से परचेज किया है. Which book? Purchase book again.
3rd of August 2010. What is the name? Lakshmidhar. And 800 less 5% trade discount. Will you subtract TD? Yes. Yes, because it is on credit basis. See, what are these values? These are your actual purchase prices. This is the actual cost. ये बिल में लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट कभी बिल में नहीं लिखते हैं. कौन सा अमाउंट लिखते हैं? नेट आफ्टर टीडी. तो बिल कितने अमाउंट का बनाया जाएगा आपका? 1350 760. तो ये जो बिल बनाया जाएगा उसका अगर जो नंबर होता है ना, सीरियल नंबर आपने देखा होगा बिल के ऊपर, 4 डिजिट का सीरियल नंबर, 3 डिजिट का सीरियल नंबर होता है. बिल्स देखा होगा ना आपने दुकान में से शॉपिंग करते वक्त, वो सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा जाता है जस्ट फॉर क्रॉस रेफरेंस. तो जो सीए होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिट सुना है आपने? ऑडिट में यही होता है. ऑडिट में वो लोग क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है आपके पास, बिजनेस ने किया हुआ है, वो बिल के साथ इसको मैच करते हैं, उसको बोलते हैं वाउचिंग. दैट इज कॉल्ड एज वाउचिंग. So for all incomes and all expenses, you do a process that is called as vouching. Vouching means what? These are all called as vouchers. All these bills are in general called as vouchers. Invoice, debit note, credit note, outward invoice, इनको in general कहते हैं vouchers. Vouching का मतलब होता है बिल के साथ ट्रांजैक्शन को मैच कर, बिल के साथ ट्रांजैक्शन को मैच कर. क्योंकि जब ऑडिट होती है तब उनको चेक करना पड़ता है कि दुकानदार सही इनकम बता रहा है कि नहीं, या सही प्रॉफिट बता रहा है कि नहीं. कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं, फेक बिल्स बना देते हैं. फेक बिल्स बना देते हैं, बुक में एंट्री कर देते हैं कि भैया ये बिल की एंट्री, एक्चुअल में वो परचेज हुआ ही नहीं होता. ऐसे इन्फ्लेट करने के लिए, खर्चा बढ़ाने के लिए बता देंगे परचेज. खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया तो टैक्स कम हो गया आपका ऑटोमेटिकली. यू गेटिंग दैट? तो फेक बिल्स का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि जेन्युइन बिल है कि फेक बिल है. हमेशा बिल 2 कॉपी में बना होता है. एक कॉपी अपने पास होती है, एक कॉपी बायर के पास जाती है. यस और नो? तो एक कॉपी अगर हमारे पास आई तो एक कॉपी सेलर के पास होनी चाहिए. तो अब वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो एज ए सीए कि भैया ये जेन्युइन बिल है कि फेक बिल है. कभी कभी उल्टा हो जाता है, बुक में एंट्री होती है लेकिन बिल ही नहीं होता. अगेन फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपेंस आप बुक में एंट्री कर दोगे, परचेस 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 परचेस, बिल है ही नहीं, खाली खर्चा बढ़ाने के लिए आपने बुक में एंट्री कर दी, खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया टैक्स कम हो गया आपका. तो ये भी पकड़ा जा सकता है. तो सीए का काम यही होता है. ऑडिट का ऑडिट मतलब पहले सुन के करता था, अभी खुद देख के चेक करके करता है. पहले बोलता था वो सामने वाला, एंट्री बोलता था, ये सुनता था और चेक करता. दैट्स व्हाई द नेम ऑडिट केम फ्रॉम. तो ऑडिट में एक्चुअली होता क्या है, आप चेक करते हो कि आपने जो जो एंट्रीज किया है, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं आपने, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं. वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जेन्युइन होना चाहिए. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जेन्युइन मतलब बिल है तो ही परचेज रिकॉर्ड होगा, बिल है तो ही सेल्स रिकॉर्ड होगा, रिटर्न रिकॉर्ड होगा. क्रेडिट नोट है तो ही सेल्स रिटर्न वैलिड गिना जाएगा, अदरवाइज दे आर ऑल इनवैलिड. ऑल ट्रांजैक्शन विल बी बोगस विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इज दिस क्लियर? सो दैट्स व्हाई दीस कॉलम्स यू हैव. कभी कभी नंबर देंगे, कभी नहीं देंगे. अब आगे बढ़े. sold goods to Lakshmidhar 900 less trade discount 10% and 2% cash discount. Which book? सेल्स बुक पे जाओ, पहले सेल्स बुक में जाओ. 4/8/2010 लक्ष्मीधर. Which discount would you subtract? Only trade discount. Only trade discount 900 minus 10% trade discount. I think that comes to 810. Is that correct? Will you subtract CD? Why? Credit पर है. Next. Placed an order with Kailash Pati, no entry. उसका भी नोट लिखना है. ये नोट सबको लिखना है, ये नोट सबका कॉमन है. Transaction, sorry, no entry for placing an order. पीछे next page. और डेट भी लिखना है. No entry for transaction on, sorry, for no entry for order placed on 5th. No entry for order placed on 5th August. What happened?
Sir, where we have to write this note? नेक्स्ट पेज, राइट साइड वाला पेज, वेर यू राइट द नॉर्मल नोट्स जो आपने किए थे, याद है जर्नल प्रॉपर और नोट्स, जर्नल प्रॉपर और नोट्स जो आपने लिखे थे ना, वो वाले नोट्स पार्ट में आप नो एंट्री पे लिख सकते हो. कम ऑन, व्हाट हैपेंड विराज भैया, खुशी का इसको भी लग गया है क्या? पहले एक ही थी खुशी, अभी दो हो गई. चलो, एसी में से लाफिंग गैस निकल रहा है. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस? Placed an order is not a transaction, hence no entry. Come on, guys. Vidyadhar bought goods. Yeah. 1 minute. Sorry. First, एक ही तो नोट लिखा है. चलेगा, वो भी लिखो या शॉर्ट में यहाँ पे लिखो. यस, दोनों. Yeah. No entry for order placed on 5th August. Okay, order placed, order received, not a transaction. So no entry. Right now, listen. Yeah. ना प्रैक्टिकली है ना, नो एंट्री का कुछ होता ही नहीं, ना नोट आता है ना कुछ आता है, उसको स्किप किया जाता है. ये थियोरी है. इसके लिए जब आप जर्नल करते हो और नो एंट्री आता है तो उसका नोट लिखो. कॉलेजेस एक्सपेक्ट दैट and they give you marks based on that. So if you don't find a no entry ka note, मतलब college doesn't find a no entry ka note, तो they will deduct 1 mark. So for safe side you write. Practically no entry का कुछ काम है ही नहीं. No entry मतलब skip it and move on. ऐसा. Okay? Is this clear? Vidyadhar bought goods from us. So we sold on credit. So which book? Sales book में लिख दो विद्याधर. सेल्स बुक में लिख दो विद्याधर. दिस इज ऑन 9th August 2010. बराबर है. 700 रुपीज. नो टीडी. इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 टू दांडेकर. इनवॉइस्ड का मतलब क्या? सेल्स. इनवॉइस्ड का मतलब होता है सेल्स, कि हमने इनवॉइस सेंड किया. हमने इनवॉइस सेंड किया. Are you listening? हमने इनवॉइस सेंड किया, इसको बोलते हैं इनवॉइस. और हमने इनवॉइस रिसीव किया तो परचेज. इनवॉइस का मतलब बिल. इनवॉइस का मतलब बिल. जब आप कुछ खरीदते हो तब बिल आता है. इनवॉइस रिसीव्ड मतलब खरीदा ऑन क्रेडिट बेसिस. इनवॉइस मतलब क्रेडिट वाला बिल, नॉट कैश वाला. कौन सा वाला बिल? क्रेडिट वाला. तो इनवॉइस आया मतलब आपने कुछ क्रेडिट पे खरीदा, और इनवॉइस दिया मतलब आपने क्रेडिट पे कुछ बेचा. तो इसका मतलब क्या है? इनवॉइस्ड गुड्स टू दांडेकर मतलब सेंड किया. इनवॉइस मतलब सेल्स है कि परचेज? सेल्स है. तो विच बुक? सेल्स बुक. व्हाट इज द नेम? दांडेकर. दिस इज ऑन 10. ओके, अमाउंट इज 500. Next, return goods to Lakshmidhar 100 rupees gross. We have returned to Lakshmidhar. Which book? Purchase returns book. So go to purchase returns book. What is the name? But what is the amount? It is 1000 gross. So what do we need to do? Minus TD. अच्छा 100 है. Okay. 100 ग्रॉस. सो कितना है टीडी लक्ष्मीधर का? देखो यहां पर भी लक्ष्मीधर है, यहां पर भी लक्ष्मीधर है. विच लक्ष्मीधर आर वी गोइंग टू कंसीडर? व्हाई दिस वन? परचेज रिटर्न्स के वक्त विच टीडी? परचेज का टीडी. सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी. कॉमन सेंस, राइट? सो परचेज रिटर्न्स के वक्त कितना टीडी था? 5%. तो टेक 5%. 95 रुपीज. इज दिस क्लियर? दो लक्ष्मीधर है, कंफ्यूज मत हो जाना. समझा सबको ये वाला? टू लक्ष्मीधर्स. परचेज में भी है, सेल में भी है. तो परचेज रिटर्न के वक्त परचेज का टीडी, सेल्स रिटर्न के वक्त सेल्स का टीडी. कैश सेल्स. विच बुक?
अभी जर्नल प्रॉपर होता तो बना सकते हैं, कैश बुक आपको यहाँ पे बनाने का नहीं है. सो ऑल कॉलेजेस हैव टू राइट अ नोट, irrespective of whichever college you are in, all colleges have to write a note only. What note you will write? Transaction on which date? Transaction on 15 is a cash sale. Hence, will be recorded in which book? Hence, will be recorded in cash book. या शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सिंपल इंग्लिश में यू कैन मेंशन, वो सेम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है आपको, खाली इतना मेंशन करना है कि भैया कैश सेल है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. सिंपल सी चीज है. कैश सेल है तो कैश बुक में डाल दो. सिंपल, समझा? कैश सेल है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, इतना सा लिखना है बस. ये जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हैं क्या? कैन यू राइट इट इन जर्नल प्रॉपर? नो, यू हैव टू राइट इट इन विच बुक? कैश बुक. कैश बुक बना रहे हैं हम लोग? नहीं, कैश बुक सेपरेट टॉपिक करेंगे हम लोग, तभी करेंगे कैश बुक. यहां पर तो सबको डालना है नोट्स में. राधे श्याम रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अस. डिसाइड कर लो. राधे श्याम रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अस. पक्का? ऑल ऑफ यू? हमने रिटर्न किया, उससे खरीदा था, ऊपर राधे श्याम है यहाँ पे, हमने उसको रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न में लिख दो राधे श्याम. परचेज रिटर्न में लिख दो राधे श्याम. व्हाट इज द अमाउंट? 500. बराबर है. दिस इज 16th. करेक्ट. देन दांडेकर रिटर्न्ड गुड्स. दांडेकर ने गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न्स दांडेकर. तो दांडेकर लिख दो इन सेल्स रिटर्न्स. दांडेकर लिख दो इन सेल्स रिटर्न्स. दैट इज 150 रुपीज. ये समझा आपको? सेल्स रिटर्न्स में दांडेकर. सॉर्टेड. सेल्स रिटर्न्स में दांडेकर. घर वालों को क्लियर? देन व्हाट नेक्स्ट? कैलाशपति एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5th August. अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया तो थिंक, आर वी बाइंग और वी आर सेलिंग? ऑर्डर प्लेस करते हो तो रेस्टोरेंट में खाते हो कि सर्व करते हो? खाते हो ना, तो बाय करते हो ना, सर्व करते हो. इफ यू प्लेस एन ऑर्डर, सेट सर्व करते हो. अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप परचेज करते हो. अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप परचेज करते हो. अगर आप ऑर्डर रिसीव करोगे तो सेल. ऑर्डर रिसीव करते हो तो आप माल बना के सेंड करोगे या माल बेचोगे. बराबर है, क्योंकि ऑर्डर आया था. ऑर्डर रिसीव किया तो माल सेंड करोगे, सेल करोगे. लेकिन ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर देते हो, तो आप गुड्स परचेज करोगे. राइट. तो यहाँ पे क्या दिया है? कैलाशपति एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5th August. तो यहाँ पे दिख रहा है 5th August को भी प्लेस्ड एन ऑर्डर. दैट टाइम देयर वाज नो एंट्री. नाउ वी एग्जीक्यूटेड. सो नाउ आर वी परचेजिंग और वी आर सेलिंग या परचेजिंग? प्लेस्ड एन ऑर्डर मतलब वी आर परचेजिंग. आर यू ऑल गेटिंग दैट? तो परचेज बुक में लिखना है कि सेल्स बुक में लिखना है? परचेज बुक में लिखना है. परचेज बुक में चले जाओ और लिख दो. क्या लिखोगे? कैलाशपति. कैलाशपति. और कहां से मिलेगा अमाउंट कैलाशपति का? देखो 5th August से देखो. वुड यू राइट 2000? 2000 minus 15% TD. That is 1700. 1700. Got this? All of you? So executed the order. Okay. So purchase book. Sold goods to Shri Banerjee 1000 less 10% trade discount. Which book? Sales book. So go to sales book, write down Shri Banerjee, and that would be 1000 less 10% trade discount. So how much? 900. 900 rupees on 23rd August.
and sold machinery for 3,000. पहले तो tell me, is it on cash or credit? Cash. It's on cash basis because party's name is not given. So what is your entry? Entry cash to machine. So that will go in cash book, right? So Transaction on 25th. same note. 25th is the cash sale of machinery. Hence will be recorded. Exactly. Transaction on 25th is a cash sale of machine, cash sale of asset. Hence will be recorded in which book? Cash. Hence will be recorded in cash book. Hence will be recorded in cash. So ये प्रॉब्लम में एक भी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर का था, वो बनाने की जरूरत नहीं, सब नोट्स में चला गया, सब नोट्स में चला गया. कैश वाले सब ट्रांजैक्शन नोट्स में चले जाएंगे आपके. समझ आया? एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर. कल हमने किया था ना, मशीनरी टू क्रेडिटर, फिटिंग्स टू डेटर, डेटर टू फिटिंग्स. तो क्रेडिट में किया होता सेल परचेज एसेट, तो इट वुड हैव बीन जर्नल प्रॉपर. तो कल बनाया था. अब आखिरी स्टेप क्या करना है? नो, टोटल करना भूलना मत. टोटल करो. कितना है ये? 3 ओके ओके. नहीं, ए भाई रुक. 14 21 2910 आएगा. हाँ, 29. 3810, 2910, 595. आराम से, ध्यान से करो. इधर भी रॉन्ग होएगा तो एक एक मार्क उठ जाएगा आपका. अभी एक पूरा साइड छोड़ दो लेजर के लिए. लीव वन फुल साइड. वन फुल साइड यू लीव फॉर लेजर. लेजर के लिए साइड छोड़ दो. सबका लेजर साथ में करेंगे. यहां से लेजर करना इज अ केक वॉक. वेरी सिंपल. इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल लेजर 2x2x2x2 बहुत सारे एंट्री एंड देन बैलेंस. वेरी सिंपल. पोस्टिंग इज वेरी सिंपल फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स. ओके, बताऊंगा मैं. सब साथ में करेंगे एक साइड पे, या वन साइड ऑल. नो वन फुल साइड. फुल साइड ना. आपण छोड़ो ना, पाछળ વાળું પણ छोड़ो. 2 sides you leave. Okay, draw for the next sum. हाँ, नोट वाला एक और उसके बाद वाला एक पूरा साइड छोड़ देना. वन फुल साइड मतलब नोट वाला तो जाने दो, उसके बाद वाला भी एक साइड पूरा छोड़ दो. फुल वन साइड. Full one side you leave, and then we are doing some number 9. Sorry, 9 Tejas and Company. Okay, 9th sum Tejas and Company. Come on, draw all of you. 9 Tejas and Company. 4 books, quick. 4 books in the 9th one. ड्रॉ करो फटाफट. बोल भाई. 41,000 આપ્યું અને કેશ છે તે કઈ ફરક નહીં પડે ને ઇન્વેન્ટરીમાં તો. ના. હા, તો 41,000 નું આપણે 20% ઓન સેલ કીધું છે, તો 32,800 લેવાનું ને. હા, પાછળ તો પાછળ રોંગ છે. રોંગ છે ને. કેલ્ક્યુલેશન એરર. 20% ઓન સેલ્સ છે ને, કોસ્ટ નથી ને. Sir, our invoice of purchase વાળું આ બે સ્ટેટમેન્ટ એ છેલ્લે 3 છે. આ સેમ છે ભાઈ. આપણું આપણે ક્લાસમાં કર્યું હતું. જો ઇનવોઇસ entered in the purchase book total 70. out of this 3,000 related to goods received prior to 31st December. તો 67 અને 3 અલગ કરી નાખ. પછી ઇનવોઇસ 63 ના, 4 ને અલગ જ રાખ, કારણ કે ઇન્વોઇસીસ છે. ઇન્વોઇસીસ એન્ટર્ડ ઇન એપ્રિલ છે આ, અને આ ઇન્વોઇસીસ એન્ટર્ડ ફ્રોમ જાન ટુ માર્ચ છે. 70,000 છે ને ઇન્વોઇસીસ એન્ટર્ડ બિટવીન જાન ટુ માર્ચ છે, અને આ 4,000 છે ને ઇન્વોઇસીસ એન્ટર્ડ ઇન એપ્રિલ છે. તો એ એના પાર્ટમાં નથી. પણ આપણે તો સ્ટોક વેલ્યુએશન તો 31st માર્ચ ટુ 31st ડિસેમ્બર ની કોઈનું પણ કરે. આ 70,000 માં છે ને ટોટલ ઇન્વોઇસ આપેલા છે જાન થી માર્ચ ના વચના, ને આ 4,000 ના ઇન્વોઇસ છે ને એપ્રિલમાં બનાવ્યા છે. તો એ જાન ટુ માર્ચ માં તો હોય જ ન શકે. હા,
हाँ समझाणो? jan to march માં ઇન્વોઇસ નથી આવ્યો हाँ, તો મતલબ तो 67 67 अलग છે, 3 अलग છે ને 4 अलग છે. તો 4 ને ઇન્ક્લુડ નહીં કરવાનો ના, તો 67. હા, 67 માં 4 ને ઇન્ક્લુડ નહીં તો કરવાનો. સેલ્સ માં સેમ સેલ્સ માં પણ સેમ, સેલ્સ માં Invoice આપો. ફાઇનલ ક્વાર્ટર ક્રેડિટ નોટ સેટ ઇન્વોઇસ વેલ્યુ 1000 had been issued to customers and respective ક્રેડિટ નોટ ઇશ્યુડ એટલે સેલ્સ રિટર્ન. અને સર જે ગુડ સેલો રિટર્ન બેસિસ પર હોય તો એમાં ઓનર તો આપણે જોઈએ હમ. ખાલી જે ફિઝિકલી ત્યાં છે ફિઝિકલી ત્યાં છે તો એડ કરી એડ નાખવાનું. કરી Sir, अभी 15th April की 31st March आता है. First question 31st March पूछो. Second question 15th. યર એન્ડિંગ 31st માર્ચ છે ને. હા, આર યુ ધ ઓનર ઓન 31st માર્ચ અને આર ધ ગુડ્સ આર ઇન સ્ટોક, ફિઝિકલ સ્ટોક ઇન 15th. સેલર રિટર્ન તો આપણે જ બનાવીએ. આપણે એમાં સેલ્સ એમાં આવ્યું 40% 60% અપ્રૂવ કર્યું 40% એને રિજેક્ટ કર્યા છે તો સેલ્સ રિટર્ન લેસ અને એડ સેલ્સ બંનેને અલગ કરો. જે 40 અપ્રૂવ કર્યા છે ને એ સેલ થઈ ગયા છે તમારા. ના 60 અપ્રૂવ જે 60 અપ્રૂવ કર્યા છે ને એ સેલ થઈ ગયા છે. સેલ થઈ ગયા તો સેલ થઈ ગયા છે તો એનું શું નોર્મલ સેલ્સ ની જેમ કરવાનું. મતલબ આની બરાબર હા, નોર્મલ સેલ્સ ની જે ક્વેશ્ચન પૂછે ને એ જ પૂછવાના. ઓકે, 60% અને 40% માટે સેલ ની એન્ટ્રી કરી છે પણ હવે અઝ્યુમ કરવાનું આ રિટર્ન છે. સેલ ની પણ છે કે સર આપણે યર એન્ડ હા આપ્યું પણ છે ને કે લેસ રિટર્ન સેલ્સ રિટર્ન તો નલિફાઈ થઈ જશે. સેલમાં પણ એડ ને સેલ્સ રિટર્નમાં પણ add. હા સર સેલ રિટર્નમાં Sales સેલ return માં રિટર્નમાં તમે યર એન્ડ પર તો એવું જ કહેશો કે બધા ગુડ્સ પાછા આવી ગયા પાછા આવવાના હા તો પછી હવે એ તો કે જે અપ્રૂવ કર્યા છે એની વાત કરું. અપ્રૂવ તો એને પછી કર્યા. પછી કરે છે અચ્છા, પછી યર એન્ડિંગ પછી કર્યા છે. હા, તો યર એન્ડિંગ પર તો બધું જ રિટર્ન થઈ ગયું. તો પહેલા સેલ અને પછી સેલ્સ રિટર્ન ડબલ એન્ટ્રી આમ નલિફાઈ થશે. આવ્યું છે, હા, એ જ. પણ બંને બતાવવાનું, સેલ પણ અને સેલ્સ રિટર્ન સેલ્સ પૂરો 6000 ને સેલ્સ રિટર્ન છે 40% રિજેક્ટ કર્યા પૂરા પૂરા. જે રિજેક્ટ કર્યા એ પણ રિટર્ન છે અને જે યર એન્ડિંગ માં એલા પાસે છે એ પણ રિટર્ન જ છે. કે સેલ તો 16th ના રેકોર્ડ કરે છે એટલે બી તો 15 પછી નું આવે છે 15 એપ્રિલ પછી લોકો Approve કરે. તો એની કાંઈ હશે કાંઈ ભાઈ નલિફાઈડ રહી આવશે ને આપણે નલિફાઈડ એન્ટ્રી, સેલ્સ રિટર્ન બંને. બટ કોસ્ટ પ્રાઇસ પર લેવું, કોસ્ટ પ્રાઇસ લેવાનો બંને. किया क्या? चलो लेट्स बिगिन. आते हैं, ट्रांजैक्शन दिखा तो ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट साइड पे. लेट्स गो वन बाय वन. Which dog is crying? वेदा. ये है क्या? कौन है? वेदा है ना? What? Sum number 9. In the books of Tejas and Company. So on the heading part, you have to write in the subsidiary books of Tejas and Company. Okay. Sum number 9. मुझे बताओ. First one, bought goods worth 16,000 less 5% trade discount and 2% cash discount from Bharat Brothers. Which book? Purchase book, right? So go to purchase book. On 1st Jan 2010, mention the name. What is the name? Bharat Brothers. And what amount you will write? Tell me. 16,000 pay. Which discount will you subtract? Which discount will you subtract? TD. Will you subtract CD? No. So 16,000 less 5% TD. How much? 800 आता है तो 15,200. तो बिल कितने अमाउंट का बनेगा? 15,200 का बनेगा. बात समझ आई? The bill value would be 15,200. Keep that in mind. Go ahead. Now, received, invoiced goods. Very good. ये क्लिक होना चाहिए. Invoiced goods. अभी बोला invoiced मतलब बिल भेजा.
The purchase है कि sale? Sale. Invoiced goods were 25,000 at 4% TD and 2% CD to Hindustan Limited. Which book? Sales book. Sales book में लिख दो Hindustan Limited. This is on 2nd January 2010. And what is the amount you will write here? 25,000 less 4% TD, 1,000 less. Perfect. So 24,000. Correct? Getting that? Just the name. Party to sales. Debit, credit, account, कुछ लिखने की जरूरत है कि नहीं? नहीं. Next. Next one. Return goods to Bharat Brothers were 2,000 gross value as they were defective. Tell me which book? Return goods to Bharat Brothers. मतलब हमने रिटर्न किया है तो परचेज बुक में जाएगा कि परचेज रिटर्न्स की सेल्स रिटर्न्स विच बुक? परचेज रिटर्न्स भारत ब्रदर्स. बराबर है. 2000 ग्रॉस दिया है. सो भारत ब्रदर्स का टीडी कितना है ऊपर? 5%. कैन यू सी दैट? तो 5% टीडी सब्ट्रैक्ट करना है. यस और नो? समझ रहा है साक्षी? सो 5% of 2000 is what? 100. So you get 1900. Getting that? Getting it? Indian Mart invoiced goods to us of 20,000 at 3% TD and 1% CD. Which book? Purchase book. पहले जाओ परचेज बुक में मेंशन कर दो इंडियन मार्ट. इंडियन मार्ट कितना आएगा ये? 20,000 less 3% trade discount. So I think that you get your net amount to be 19,400. Is that correct? रफ में कर लेना फटाक से कैलकुलेशन. Getting it? Purchase book less TD क्योंकि क्रेडिट पर है तो खाली TD माइनस. कैश पर होता तो CD माइनस होता. कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होते ही नहीं है. नेक्स्ट वन. Return goods to us 1,000 gross value by Hindustan Limited as they were not as per the sample. Return good to us मतलब sales return. हमको रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न. हिंदुस्तान लिमिटेड बराबर छे. कितने अमाउंट का है? 1,000 ग्रॉस है तो क्या करने का? कौन सा टीडी? 4%. हिंदुस्तान का टीडी 4%. कैन यू सी दैट? So what's your final value? I think it is 960 rupees. 960 rupees, right? घर वाले समझ रहे हैं? Any doubt घर वाले? बढ़े आगे बताओ. Next one. Return goods worth 4,000 gross value to Indian Mart as they were in damaged condition. हमने रिटर्न किया है तो विच बुक? परचेज रिटर्न बुक में चले जाओ. इंडियन मार्ट कितने हैं? 4,000. बट 4,000 ग्रॉस वैल्यू है. व्हाट आर वी सपोज टू डू? विच टीडी? विच टीडी? इंडियन मार्ट का टीडी विच इज 3% टीडी, राइट? 4 3s are 12, 120. तो 3880 आएगा आपको. इज दैट करेक्ट? हेलो, getting it? All of you? निधि ने समझा है? निधि, पूरव, getting that? कृष, धीर. बढ़े आगे. Received an order. What are we supposed to do for received an order? No entry for order received on 25th Jan. No order for, no entry for order received on 25th January. लिख दो सब लोग. सबको नोट ही लिखना है ये. All of you have to write a note. और नोट थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो नीचे की तरफ क्योंकि ऊपर जर्नल प्रॉपर भी आने वाला है ये सब. तो इसलिए मैंने भी जगह छोड़ा हुआ है यहाँ पे. दिख रहा है आपको? ऊपर नोट नीचे जर्नल प्रॉपर तो भी चलेगा. ऊपर नोट लिखा है तो नीचे जर्नल प्रॉपर. कॉलेज ने करवा दिया जर्नल प्रॉपर तो आना चाहिए ना इसके लिए. अभी फिलहाल सब लोग दोनों करो, नोट एज वेल एज जर्नल प्रॉपर.
ये तो सबके लिए नोट है, नो एंट्री तो सबके लिए नोट है। बढ़ो आगे, खाली जेपी वाले पार्ट के लिए करना है। देखो, प्लेस द परचेज ऑर्डर विथ रामलाल एंड सन्स, ये भी क्या है, नो एंट्री। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रामलाल एंड सन्स, दैट इज ऑल्सो नो एंट्री। तो मैं इधर लिख रहा हूं, नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 28th, नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 28 January, बराबर છે? Sorted. No entry for order placed on 28th January. Then next one, bought office furniture from Sudhir and Sons on credit. Credit पे खरीदा office furniture from Sudhir and Sons. Asset purchased on credit. Can we put it under purchase book? Why? Asset. What is the journal entry? What is the journal entry for asset purchase on credit? Furniture to Sudhir and Sons, right? So it should go in which book? Journal proper. Should go in journal proper. So drop a journal proper, all of you. Drop a journal proper. Yeah, the format of journal property is exactly same as journal. So date, particulars, LF, debit, credit. And what entry you will pass? फर्नीचर आपने खरीदा है कि बेचा है? परचेज किया है, तो फर्नीचर एसेट बढ़ा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रामलाल ना, नहीं, सुधीर एंड सन्स। फर्नीचर टू सुधीर एंड सन्स, कितना? 32,000. ओके, 32,000. दिस इज बीइंग furniture purchased from Sudhir and Sons. Okay. या फिर या तो ये करो, या तो फिर नोट, और वाला नोट। ये एग्जाम में और कॉलेज में दोनों नहीं करना है, एक करना है। यहाँ पे आपको दोनों करना है। हाँ, मेरे टेस्ट में एक कर सकते हो, ठीक है? पोदार एंड सोमैया, यू हैव टू डू जर्नल प्रॉपर। ओके, अच्छा, नोट में क्या लिखने का? ट्रांजैक्शन ऑन 29 इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, hence will be recorded in journal proper. Hence will be recorded in journal proper. हाँ, नहीं, ये वाला क्लियर है? नोट, transaction on 29th is a credit purchase of furniture, hence will be recorded in journal proper. Next one, 31st, लिख दो पहले, दोनों लिख दो, एंट्री एज वेल एज नोट, एंट्री एज वेल एज नोट। एग्जाम में दोनों में से एक करना है, कॉलेज में दोनों में से एक करना है, अकॉर्डिंग टू कॉलेज। किसी कॉलेज में जेपी होगा, किसी कॉलेज में नोट, ठीक है? डिस्पैच्ड गुड्स टू भंडारी एंड कंपनी, लिखो 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 लिखो, कंप्लीट कर लो, यहां तक कर लो, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो फटाफट। एनएम में नोट, एनएम खाली पोदार और सोमैया में जेपी होता है, बाकी सब कॉलेजेस में जनरली नोट होता है। बट यू नेवर नो, एक साल से एग्जाम नहीं हुआ है, अभी कॉलेज का दिमाग घूम जाएगा सपोज, तो चेंज किया तो पता होना चाहिए। HR is also having notes, no tension. Okay, now ये रहा नोट, dispatched goods to Bhandari and company as per his order received on 25th Jan. बेटा ऑर्डर रिसीव करोगे तो सेल करोगे कि परचेज? पक्का सेल, पक्का? अच्छा ठीक है, चलो, अथर्व बोल रहा है तो हम लोग सेल करते हैं।
ऑर्डर रिसीव्ड मतलब सेल करना है, तो विच बुक? सेल्स बुक. गो टू सेल्स बुक, भंडारे एंड कंपनी. ओके, 25th January कितने का ऑर्डर था? 60,000. तो व्हाट विल बी द अमाउंट? 60,000. ये लास्ट नोट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? 3 ही नोट है, 2 नो एंट्री के हैं और एक जर्नल प्रॉपर का है. आपका प्रॉब्लम होता है खत्म. करना है क्या लास्ट में? यहाँ पे टोटल तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है. टोटल छोड़ोगे मार्क्स चले जाएंगे 4. 34,600. 5780 Is this clear? चलो कर लो. Come on, next one. इसमें लेजर के लिए जगह छोड़ना है. यस, 1 full side छोड़ना है. यस, 1 full side you leave for leisure. 1 full side you leave for leisure. हाँ, पूरा साइड का मतलब वही होता है, 1 full side. पूरा एक साइड छोड़ दो लेजर के लिए. हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही हो? सॉरी. हाँ, आखू जोड़ी ना को. हाँ, नेक्स्ट सम नंबर. I want you all to try on your own. 18th problem. चलो, सम नंबर 18 खुद से ट्राई करना है सबको. सम नंबर 18. सॉरी, 1 side, 1 full side, but 4 accounts will be there. Purchase return, sales return. These 4 accounts. Rest of the accounts posting is same. So when they ask you ledger in subsidiary, you have to make only these 4. I'll tell you when we do it. Unless and until specified. सुनो, सम नंबर 18. 1 मिनट देख लो. सम नंबर 18 आपको खुद से ट्राई करना है. पेज नंबर 50. सम नंबर 18 मिला सबको? 18th सम. जरा बुक किधर है? हाँ, 18th सम मिला सबको गाइस? 18th सम पेज नंबर 50 देखा है बद्दाने? उसमें थर्ड वाला पढ़ो. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेघदूत ट्रेडर्स 37,350 एंड पेड कैरेज 150. पहले परचेज कैसे कर रहे हो आप? तो परचेज बुक में जाएगा मेघदूत ट्रेडर्स. कैरेज पेड की क्या एंट्री होती है? कैरेज टू कैश. विल यू ऐड कैरेज टू गुड्स? व्हाई? इट इज रेगुलर एक्सपेंस. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड्स. एसेट नहीं खरीद रहे हो आप. एसेट खरीदते उस पर कैरेज होता तो आप एसेट को ऐड कर देते. हेलो, बट आप क्या खरीद रहे हो? गुड्स. गुड्स पे कैरेज पे कर रहे हो तो रेगुलर एक्सपेंस है. व्हाट इज द एंट्री फॉर कैरेज? कैरेज टू कैश. इट्स कैरेज टू कैश. तो दैट विल गो इन कैश बुक. मतलब नोट. समझा? डोंट जज. स्मॉल बिग अभी देखो ही मत. अभी ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम, छोटा बड़ा सब डाल देने का कैश बुक. पेटी कैश बुक का चैप्टर आएगा तभी करना छोटा छोटा. अभी तो सब कुछ कैश बुक. इज दिस क्लियर? तो नोट में चला जाएगा. कैरेज विल गो इन नोट. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? हेलो, कम ऑन, ट्राई. दिमाग लगाओ, खुद से करो. पूरा प्रॉब्लम खुद से करो. कैश ट्रांजैक्शन के लिए नोट लिखना है. समझ में आ रहा है सबको? और क्रेडिट वाले हैं ना, जो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट है, वो कहां जाएगा? धीर शाह भैया. क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, विच बुक? ऑफ एसेट. जर्नल प्रॉपर. एंड क्रेडिट सेल ऑफ एसेट अगेन जर्नल प्रॉपर. गुड्स है तो यहाँ पे परचेज बुक सेल. क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट इन जर्नल प्रॉपर. या जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी है या फिर नोट. यहाँ पे आपको दोनों करनी. ठीक है, चलो बनाओ. खुद से ट्राई करो. ना समझ में आए तो पूछना. दीर्षा अभी भी कच्चा लग रहा है. एंट्री ना आवड़े तो पूछीने करजे. क्रिश पण અહીંયા પણ શું નામ છે ભાઈ? जीत.
જીત મહેતા પૂછીને કરજે. ચલો चलो घर वाले ट्राई करो, खुद से ट्राई करो सब लोग. डेट नेम ऑफ सब लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है. कम ऑन, डू इट. फोकस. What you told me, KJ का time 1 to 5. So all other colleges are in the afternoon except for Mithi Bai. None of the other colleges are in the morning, right? SK has got any time? SK? SK का कुछ आया? टेस्ट पेपर्स जो लोग ने कलेक्ट नहीं किया है आज जाते जाते कलेक्ट कर लेना, बाहर पड़े हुए हैं. 15th October is your ledger test, ledger plus journal. Today evening there is practice, offline practice at class 5:30 to 7. Today evening those who want to come and practice come during 5:30 to 7. क्लास में आके प्रैक्टिस करो ऑफलाइन. તું છે હમણાં, તું છે 15 ના નથી, તું છે. ક્યાં જાવ છો? કાશ્મીર. આવું કેમ ઓડ ટાઈમ પર નીકળી જાય? મસ્ત દિવાળી હોલિડેઝ આવે છે ત્યારે જવાનું, વચમાં ઘૂસી જાવ. 15 દિવસ આગળ પાછળ. चलो, डोंट बी केयरलेस इन बेसिक्स. एबीसीडी में अटकोगे फिर इंग्लिश कच्चा रह जाएगा, फिर टूटा फूटा स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा. दिस इज एबीसीडी ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर. ना अवॉइड कर दे, ध्यान जैसे तो जैसे. अकाउंट में तो ग्रामेटिकल एरर्स चेक ना करो, पर ध्यान રાખવાનું. हाँ, सेकेंड वाले में मतलब वो थर्ड वाला है उसमें एंट्री भी आएगी और नोट भी आएगी. कैरेज की नोट आएगी और परचेज की एंट्री आएगी. परचेज कैश कैश हमारा कैश बुक में પછી જ્યારે पेटी कैश करसू ત્યારે કરવા. यहाँ पे नोट में कुछ भी पेटी कैश का आएगा ही नहीं, मतलब लिखना ही नहीं है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू कैश बुक, ऐसे ही पकड़ के चल. कैरेज भी कैश बुक. नोट में ट्रांजैक्शन लिखना है कि कैरेज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैरेज पेड इन कैश, हेंस विल बी रिकॉर्डेड. यही है ट्रांजैक्शन ऑन third includes carriage
paid in cash. Hence will be recorded in cash. Hence will be recorded. नोट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है. कैन मेंशन इट इन ओन वर्ड्स लाइक नरेशन इट इज. खाली ये पता होना चाहिए कौन से बुक में जाएगा. दैट्स इट. कैरेज पेड इन, इतना भी लिख सकते हो. कैरेज पेड इन कैश विल बी रिकॉर्डेड इन कैश. शॉर्ट एंड स्वीट तो भी चलेगा. जस्ट मेंशन द बुक. तो सेम डेट पर कैश परचेज और कैश सेल्स बोले तो दो अलग-अलग हो रहे हैं. एक कॉमन नोट चलेगा. कैश परचेज एंड कैश सेल्स बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन कैश. Common note, cash book. Both will be recorded in cash book. No, no. सेम गुड्स थ्रेशोल्ड ऐसा नहीं दिया. कैश परचेज किया और कैश सेल किया, दोनों अलग अलग है, बट सेम डे पे हो रहा है, तो कॉमन नोट में चलेगा. सिंगल नोट. आ रहा है एंट्रीज? हेलो, ऑल ऑफ यू गेटिंग द एंट्रीज? आ रहा है कि नहीं? SOR ની બધું હા બધા એસઓઆર નું બાકી છે, એ છોડી દો. એસઓઆર નું બાકી છે. નોર્મલ સમ ખાલી કરી નાખો. રિમોટ ક્યાં ગયા દૂસરા? અહીંયા બીજો એસી રિમોટ છે. હા, એક મિનિટ. હવે આપણે કહીએ છીએ નવેમ્બર ઇન્ટરેસ્ટ આપણે એ લોકો પેપર નાખ્યું તો આપણે એને ડિવેબલ લેવાની ને શેની? ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવેબલ ની એને ભલે પે કરી. હા પહેલા 5 વર્ષ કે પછી હા, તો કમ્બાઈન કરી નાખવાનું. કેશ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ પાર્ટી અલગ અલગ કરો તો ચાલે. સર પોતાનો એક્સેપ્ટન્સ પોતાનું હોય તો બીપી બરાબર. હા 960 વાળી ને હા 960 ની અને આમાં નહીં હેલો સર. બોલો બોલો. સર 22nd વાળામાં એવું લાગ્યું કે 19,450 નું ક્રેડિટ પરચેસ કર્યું અને દે અલાઉડ અ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફ 150, તો એ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરવાનું બાકી છે કે કરેલું છે? जो 22nd में दिया है क्रेडिट परचेज इज फ्रॉम मिकी ट्रेडर्स 19,450 एंड दे अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 150. तो क्या माइनस करना है कि नहीं करना है? करना ही करना है. 10% होता तो आप करते ही. इधर खाली अमाउंट दिया है 150, तो भी माइनस करना ही है. गॉट इट? ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 150 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ट्रेड डिस्काउंट.
Hmm. कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ। ये नोट सबको लिखना है, कैश बुक वाला ऑल कॉलेजेस, उसमें कुछ टू थॉट्स है ही नहीं। ये नंदनी वाला आ रहा है अमाउंट 30,060। नहीं पैसा नहीं, सेंटर डेबिट नोट मतलब परचेज रेट। बताता हूँ देखो, ये क्या आएगा, ऑफिस फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर टू सुहानी फर्नीचर। या फिर नोट में ट्रांजैक्शन ऑन 26th is credit purchase of furniture, yes, will be recorded in JP। हाँ हाँ 29 का दो अलग अलग आएगा, परचेज अलग और सेल अलग। 29 का परचेज में आएगा पहले गरिमा स्टोर्स, परचेज में आएगा गरिमा स्टोर्स 8,000, और सेल में आएगा अनीता, और अनीता को क्या प्राइस पे सेल किया, 8,000 प्लस 25% प्रॉफिट, that is 10,000। 8,000 plus 25%, right? So that's your profit. Will you record profit loss separately? What do you mean by center debit note to Mickey Traders? Purchase returns।
जब भी परचेज रिटर्न करते हो आप क्या भेजते हो? डेबिट नोट। और जब भी सेल्स रिटर्न होता है ना, तब आप क्या भेजते हो? क्रेडिट नोट। When you do purchase return, you will चिपकाए a debit note and you send it. Okay? कि भैया हमने आपका अकाउंट डेबिट किया, हमने आपका अकाउंट डेबिट किया। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, ये दे सकते हैं आपको सम में। सेंटर डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, सेंटर क्रेडिट नोट मतलब रिसीव्ड डेबिट नोट मतलब रिसीव्ड डेबिट नोट मतलब सेंटर क्रेडिट नोट, रिसीव्ड क्रेडिट नोट मतलब सेंटर, समझा? सेंटर डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न। क्यों सेंटर डेबिट नोट? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पार्टी टू, तो पार्टी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसका प्रूफ है कि भाई हमने आपका अकाउंट डेबिट किया, ये प्रूफ लिख के दिया है। नोट में डिटेल है, ये डिफेक्टिव गुड्स है, हमने आपका अकाउंट डेबिट किया। सो सेंटर डेबिट नोट, टेल मी गाइस, सेंटर डेबिट नोट परचेज रिटर्न, सेंटर क्रेडिट नोट रिसीव्ड डेबिट नोट, रिसीव्ड डेबिट नोट मतलब सेंटर क्रेडिट नोट, तो सेल्स रिटर्न। एंड रिसीव्ड क्रेडिट नोट मतलब सेंटर डेबिट नोट मतलब परचेज। गॉट इट? तो ये आमने सामने एक्सचेंज होते रहते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट फॉर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। ये देखो शॉर्टकट वे में याद रखना है ना, शॉर्टकट। तो ये सब हम लोग सेंड करते हैं, ये सब सेंड करते हैं, ये सेंड करते हैं, ये सेंड करते हैं, ये सेंड करते हैं, खाली ये रिसीव करते हैं। परचेज के वक्त कुछ सेंड नहीं होता, परचेज के वक्त खाली इनवॉइस आता है, बाकी सब जो सेंड किया वो प्रूफ है। Whatever we send, that is our proof. बना के नोट बना के सेंड किया हुआ। Got it? तो सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस वी आर सेंडिंग, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट वी आर सेंडिंग, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट वी आर सेंडिंग, खाली परचेज के वक्त इनवॉइस वी आर रिसीविंग, खाली इधर रिसीव्ड है, बाकी सब सेंट सेंट सेंट। तो व्हाट इज सेंट अ डेबिट नोट टू मिकी ट्रेडर? क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। मिकी ट्रेडर्स परचेज रिटर्न्स 3200 बराबर છે। પતી ગયું? ટેલ મી ધ ટોટલ્સ। 91 then 160 and चलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो सब लोग। देखो ये खाली इस महीने का एंट्रीज है, हर महीने में तुम कम भाव पे, मतलब हर महीने में जितना गुड्स खरीदो सब बिकना जरूरी। किसी महीने में परचेज ज्यादा होगा, सेल कम, किसी महीने में सेल ज्यादा परचेज कम। मैटर करता है कि 12 महीने में क्या किया तुमने। 12 महीने में टोटल सेल शुड बी मोर देन परचेज, तो आपका प्रॉफिट। सब माल बिका नहीं होगा ना ये महीने में, इसके लिए परचेज ज्यादा है, सेल्स कम। ये किस ट्रेडर एक से लाइक सपोज आप है और मैं एक ट्रेडर, मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा अगर आपको बेचूंगा भी क्यों? दोनों हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप समझो शर्ट मैन्युफैक्चरर है सपोज, तो डिजाइन का एक साइज का नहीं अब बटन्स खरीद रहे हो और उसी को आप शर्ट्स बेच रहे हो। अब बटन्स खरीद रहे हो, बटन का डीलर है, उससे बटन खरीद रहे हो और शर्ट्स वैरायटी में भी बेच रहे हो, फुल स्लीव शर्ट और हाफ स्लीव शर्ट, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट हाँ 1 2 3 का मेरा मार्किंग रह गया था एक्चुअली, मैं देता हूँ, वही देने का था मेरे, दूसरा बैच में मैंने दिया। पेज नंबर 1 पढ़ना है पूरा। किया था ना मैंने, आई थिंक ये लोग का रह गया था। हाँ ये पढ़ना है सबको। पेन है ना, पेंसिल चाहिए, सॉरी। पेज नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है आपको? हेलो, पेज नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, उसको स्टार मार्क करना, वो पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का नाम है देशी नामा, यू विल फाइंड इट समवेयर, देशी नामा। ओके, फर्स्ट पैरा के एंड में। देन हु वाज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, वो भी मिलेगा नीचे।
Luca de Bargo Pacioli. Can you see that? Luca di Bargo Pacioli. बताया था, याद है किधर लेक्चर में पंचोली 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 कर रहे थे, याद है? रिमेंबर दैट, लुका डी बार्गो पाचोली, रिमेंबर दैट. ये रीड करना पूरा इवोल्यूशन. बाद में मीनिंग डेफिनेशन वगैरह सब शीट में किया हुआ है, इसलिए मैंने 2 और 3 नहीं दिया. फर्स्ट पेज खाली पढ़ना, बाकी शीट में मिल जाएगा आपको सब. ठीक है. देन बाद में मैंने मार्क करवाया आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस. फिर हमने किया कैश अक्रूवल एंड मिक्स्ड और हाइब्रिड. रिमेंबर दैट, पेड और इनकर्ड बेसिस, कैश एंड अक्रूवल. उसके बाद हमने किया एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू, राइट. उसके बाद का हमने किया हुआ है टीडी सीडी किया हुआ है, नीचे दिख रहा है आपको, ऑलरेडी डन. सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट किया हुआ है, याद है आपको? व्हाट इज अ सॉल्वेंट बिजनेस हुज एसेट्स आर more than or equal to external liability. Specific, which liability? Assets are more than or equal to external liability, that is called as a solvent business. And assets are less than external liabilities, insolvent, bankrupt. उसके बाद वाले दो को टिक करना, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. व्हाट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न? व्हाट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न एंड व्हाट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है. ट्रेडिंग कंसर्न मींस ऑर्गेनाइजेशंस दैट रन फॉर प्रॉफिट. ऑर्गेनाइजेशंस दैट रन फॉर प्रॉफिट. All normal business organizations are called as trading concerns. Is this clear? All normal business organizations are called as trading concerns. Trading concerns मतलब businesses that run for profit motive. Profit motive वाले business को कहा जाता है trading concerns. But the businesses which run for service motive, business नहीं बोला जाता उनको, organizations that run for service motive, they are called as not for profit concerns. They are called as not for profit concerns. What are the example of trading concerns? Pehle, all companies, Reliance, Infosys, Tata, Birla, Wipro, TCS, yeah, chota retail shop, wholesale shop, restaurants, whatever businesses you find, all are called as what? Trading concerns. Concerns that run for profit. What are the examples of not for profit? NGOs, very good. Or government hospitals. Sorry, घर वाले. Colleges, government granted colleges, not the private है, वो लूटता है. हीरानंदानी नहीं, और तुम्हारा स्कॉटिश नहीं, और ये भी नहीं अपना धीरूभाई अंबानी नहीं, ये सब लूटता है. एडेड वंस, गवर्नमेंट एड वाले. ओके. देन और भी बहुत सारे एग्जांपल है. आप जिस बिल्डिंग में रहते हो ना, हाउसिंग सोसाइटी, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, हाउसिंग सोसाइटीज, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आप एज अ मेंबर, आप सोचो हाउसिंग सोसाइटी जो आपकी कॉलोनी है, दैट्स अ ऑर्गेनाइजेशन. आप उसमें फ्लैट्स खरीदते हो, तो उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल किसका कंट्रीब्यूटेड है? आपका. और सामने एसेट में बिल्डिंग है, आपने उसको कैपिटल दिया है फ्लैट्स का, और उसके एसेट में क्या दिखेगा? आपका बिल्डिंग का वैल्यू. ओके. फिर आप हर महीने मेंटेनेंस पे करते हो कि नहीं करते? करते हो ना. आप हर महीने मेंटेनेंस पे करते हो, वो होती है सोसाइटी की इनकम. सुना है ना मेंटेनेंस? बीड़े मांगता है, मेंटेनेंस का चेक ला, मेंटेनेंस का चेक ला, तो जेठालाल लेट देता है. तो मेंटेनेंस इज एन इनकम फॉर द हाउसिंग सोसाइटी, एंड उससे वो हाउसिंग सोसाइटी खर्चा करती है. कहाँ खर्चा करती है? लैंप पोस्ट, गार्डनिंग, लिफ्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, पाइपिंग, गैस, रिपेयर्स, उस सब में सोसाइटी खर्चा करती है. तो आपने शायद देखा भी होगा, हर साल एजीएम होता है और आपके घर पे अकाउंट्स भी आते हैं, उसके एनुअल जनरल मीटिंग के बाद अकाउंट्स आते हैं आपके. वो एनपीओ कैटेगरी में आ जाए. वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. किसके लिए? वो सर्विस. तो टेम्पल्स हो गए, सिद्धिविनायक टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट द मोटिव इज नॉट प्रॉफिट, मोटिव इज सर्विस. इनको डोनेशन आता है, वो उनका कैपिटल. मंदिर का गोल्ड, ये उनका एसेट. मंदिर की मूर्तियां, मंदिर का बिल्डिंग, मंदिर का गोल्ड, ये उनका एसेट. फिर आप जो चंदा देते हो ना दान पेटी में,
वो उसकी इनकम और उससे जो पूजा सामग्री वगैरह पे डोनेट वो आप सब ऑर्गेनाइज करता है पूजा, उसका खाना वाना देता है, वो सब उसका एक्सपेंस। तो दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें भी एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस होता है, लेकिन मोटिव इज नॉट profit, motive is service. All of you understood? So organization that run for profit motive are called trading concern, and which run for service motive are called not for profit concern. Got that? Next one, very important, goodwill. Goodwill, can you see that goodwill? What is goodwill? Goodwill is a name or reputation of a business expressed in terms of money. Name or reputation of a business expressed in terms of money, that's called goodwill. That's called, मुझे बताओ घाटकोपर में कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर भी अच्छे वाले कौन से? One of the best, everyone loves it, almost everyone loves it. Why? क्या उसका डिजाइन अच्छा है? डिजाइन, फूड. So basically that is an intangible thing. That taste is an intangible thing. उसका service is an intangible thing. तो वो एक साल में डेवलप नहीं हुआ. Chicha was formed like I remember 25 years ago. 25 साल पुराना रेस्टोरेंट है वो. धीरे 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 खाने का क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप, आपकी होम डिलीवरी सर्विस, कस्टमर के साथ व्यवहार, क्वालिटी ऑफ फूड, सब चीज का मिला के उसने ये डेवलप किया हुआ है. उसको कहा जाता है गुडविल. उसको कहा जाता है गुडविल. अब गुडविल इज व्हाट? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. याद है इंटेंजिबल्स की लिस्ट में हमने सीखा था तभी. तो कल उठ के अचीजा का बैलेंस शीट का टोटल एसेट, मतलब उसका जगह, एयर कंडीशन सब मिला के 10 करोड़ रुपया होता है सपोज. तो मैं जाके अचीजा को खरीदने जाऊंगा 10 करोड़ में, तो क्या मुझे 10 करोड़ में बेचेगा वो? नहीं, बोलेगा मेरे को 12 करोड़ दे, मेरे को 12 करोड़ दे. 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फॉर व्हाट? How did I get that value of 2 crore, or how did he calculate that 2 crore? हाँ, तो बोलने का मतलब मैं अचीजा खरीद लूं तो कल उठ के आप आना बंद कर दोगे कि मैनेजर ओनर चेंज हो गया, हम नहीं जाएंगे. आप तो आते ही रहोगे. तो मेरे को मुफ्त में प्रॉफिट मिल रहा है, मुफ्त में कस्टमर्स मिल रहा है, तो आई विल बी मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट बैठे बैठे ऑन द नेम ऑफ अचीजा. तो अचीजा वाला बोलेगा इस प्रॉफिट में मेरा भी हक बनता है. तो 2 करोड़ रुपया वो क्या ले रहा है? उसका हक का प्रॉफिट ले रहा है. जो फ्यूचर में मैं कमाने वाला हूं उसका हक का प्रॉफिट ही इज टेकिंग इट राइट नाउ. दैट इज कॉल्ड एज गुडविल. सो गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. वो सब आप 12th में लर्न करोगे, सीए फाउंडेशन में लर्न करोगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये सब भी आप लर्न करोगे प्रॉफिट्स के बेसिस. If we are not selling anything, फिर भी goodwill add होता है. For example, we branded clothes लेते हैं तो That is brand name. That's a different asset. Brand name is a different asset. Goodwill is for businesses, organizations. Goodwill is for organization. Brand name is for one product. Brands are individual product based. Colgate, Pepsodent, Nike, Adidas. Okay, Airtel. Airtel नहीं, sorry, Airtel is a company. Your ये हो गया तुम्हारा iPhone हो गया. iPhone is a brand name. iPad is a brand name. Got that? So these are product based. That is called as brand name. So no one can make iPads except for Apple. No one can make iPhone except for Apple. कल उठ के Apple ने Samsung को iPhone का ब्रांड बेच दिया. Then Samsung can make iPhones. वो लेगा नहीं. So बोलने का मतलब brand names is a different asset. Goodwill is nothing but total value of business में उसके reputation का value. That is called goodwill. Is this clear? So in short, how to explain goodwill? Goodwill is nothing but intangible asset. It is name or reputation of a business expressed in terms of money. Name को money में कैसे convert करोगे? Based on profits. जितना ज्यादा profits उतनी ज्यादा goodwill. In short, जितना ज्यादा profit उतनी ज्यादा goodwill. Okay? ये भूख रख दिया है, ये क्या लड़की है? अरे मैं रखने को दिया था, सबने डाल दिया. What nonsense. नेक्स्ट वाला पढ़ो उधर. आईसी पीपल 4 मिनट एक्स्ट्रा किया है, 9 मिनट लेट स्टार्ट किया, उसका कुछ नहीं. देन हम थोड़ी लेट.
नेक्स्ट वाला देखो, प्रॉफिट और लॉस. व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस? Income minus expense. What are incomes? The money which you earn every year. The incomes which you earn, revenue which you earn every year, money which you earn every year in business. That's called income. And what is expense? Amount you spend every year. Amount you spend every year, year on year. Which is the biggest income for a trading concern? Income, sales. And expense? इसके अलावा भी कौन से एक्सपेंस होते हैं? कैरेज, फ्रेट, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, discount allowed, bad debts, all are expenses. What are other incomes apart from sales for business? Commission received, interest received, rent received, dividend received if you invest it, right? So income, profit on sale of assets, profit on sale of investments, right? Discount received. So what will be the profit? Profit कैसे calculate होता है? Income minus and loss मतलब expense minus income. If expense exceed income, it's called loss. If income exceed expense, it's called profit. What is income and revenue? अभी उधर वो पागल लोग ने दोनों अलग दिया है, but income and revenue are one and the same. Income and revenue are one and the same. Okay? दोनों सेम ही है. ये वाला. हाँ, टिक करवाना. बद्दा चारों है. Profit, loss, income and revenue. Can you see that? Hello. कुछ अलग बोल रहे हैं. एक्चुअली बोथ आर इंटरचेंजेबल. खाली तुमको ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ना मैं बताता हूँ क्या को अलग करके दिया है तुमको. हाँ, एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अलग है. बाकी एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर इज वन एंड द सेम. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम लोग को बोला एक्सपेंडिचर इज फॉर लॉन्ग, लाइक इफ यू आर बाइंग एन एसेट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ, तो ऐसा हम लोग को लॉन्ग टर्म दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. लॉन्ग टर्म वैल्यू देन ना इनकम के लिए नहीं बोला था, बट इसलिए बोला था. मैंने बोला एसेट है ना, एसेट हमने कल ही तो किया. एसेट खरीदा तो इट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. हर साल स्पेंड करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, दे आर वन एंड द सेम. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस आर वन एंड द सेम. हर साल वाला है रेवेन्यू. अब सुनो, इनकम और रेवेन्यू इन जनरल आप आगे जाओगे ना हायर स्टैंडर्ड्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेम. ट्रेडिंग कंसर्न के लिए आपको क्या अलग करके दिया है? रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल्स. रेवेन्यू इज फ्रॉम जो सेल्स इनकम होती है ना उसको वी कॉल इट रेवेन्यू. सेल्स इनकम को वी कॉल इट रेवेन्यू. खाली सेल्स इनकम. विच इनकम? सेल्स गुड्स बेच के जो आया उसको रेवेन्यू. बाकी जनरली इनका इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव उसको कहा जाता है इनकम. बट सेल्स को भी इनकम ही कहा जाता है. तो इन जनरल आपका रेवेन्यू का मतलब इनकम ही होता है. एनी इनकम इज रेवेन्यू, एनी रेवेन्यू इज इनकम ओनली. बट यहां पर 11th स्टैंडर्ड में ये टेक्स्ट बुक में अलग करके दिया है, इसलिए कॉलेजेस गो फॉर दैट. सेल्स जो होता है, सेल्स इनकम, उसको आप कंसिडर करो एज रेवेन्यू. एंड बाकी सब इन जनरल जो कहते हैं ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इसको आप इनकम बोलो, इसको आप इनकम. बट याद रखना प्रैक्टिकल मेथड में रेवेन्यू और इनकम आर इंटरचेंजेबल. दे आर वन एंड द सेम. ओके, सो हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट्स? बेसिकली इट इज इनकम माइनस एक्सपेंस. बेसिकली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बोलो या इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज योर प्रॉफिट. ठीक है. नाउ लास्ट वन एंड देन वी वाइंड अप. एसेट्स के 3 पार्ट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट. कैन यू सी दैट? हमने फिक्स्ड और करंट किया हुआ है. व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? लॉन्ग टर्म. व्हाट इज करंट एसेट? 1 year और लेस की लाइफ. एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट? Furniture, land, building, equipment, machine, computer. These are patents, goodwill, trademark. These are called fixed assets, long term, life more than a year. What are the examples of current assets? Goods, cash, debtors, bank,
एक साल के अंदर फॉर्म चेंज कर देते हैं। बैंक में 1 साल से ज्यादा पैसा रखते हो, निकालते हो, रखते हो, निकालते हो, रखते हो। कैश कीप्स ऑन चेंजिंग, गुड्स कीप ऑन चेंजिंग, डेटर्स 3 महीने के अंदर पैसा दे देता है, वापस बेचते हो, वापस 2-3 महीने के अंदर पैसा देता है। दे कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज विच एसेट? करंट एसेट। लाइफ इज 1 year और लेस, करंट एसेट। लाइफ इज 1 year से ज्यादा, फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? What is fictitious asset? Yesterday we discussed a term called deferred revenue expenditure. याद है आपको? Hello. What was deferred revenue expenditure? Expense है लेकिन life is more than a year. Advertisement, heavy legal expense. उसी को कहा जाता है fictitious asset. Another name for deferred revenue expenditure is fictitious. Fictitious मतलब काल्पनिक asset. उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा नहीं। आप अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किसी को सेल कर सकते हो, उसको बेचोगे तो पैसा मिलने वाला नहीं। तो फिक्टिशियस एसेट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विथ लाइफ मोर देन अ ईयर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम होता है फिक्टिशियस एसेट। ओके, वो दो ही रहेगा। सॉरी, ये रहेगा ना, ये लाइक वो हेवी एडवर्टाइजमेंट और हेवी, अभी हैवी एडवर्टाइजमेंट और हैवी लीगल एक्सपेंस दो ही है। वी स्टॉप ऑल फॉर द डे। कुछ होमवर्क नहीं है आज, मोस्टली या कल तक आपको बैच की लिस्ट आ जाएगी। सैटरडे को मोस्टली वी आर गोइंग कंप्लीट। सैटरडे शायद नहीं हुआ तो ट्यूसडे पक्का। चलो बाय बाय, सी यू। टेक And so we have to collect our paper. पेपर्स लेके जाओ, पेपर्स लेके जाओ। आज 5 बजे तक कभी भी आके लेके जाओ, अभी भी Sir. लेके जाओ, हाथ पड़ा हुआ है। हमारा पेपर कृष्णा Bye sir, thank you. Bye.